So let us begin with chanting of Omkar 3 times. Sairam. So we are discussing about company accounts and especially accounting for share capital. So in the first class we discussed about meaning, features of the company. Then we discussed about 3 terms. The 3 terms were prospectus, minimum subscription, and preliminary expenses. Now the topic is share capital. Okay. So share capital means the amount of capital received by company by issue of shares. That is called as shares capital. The capital received by a company by issue of shares is called share capital. Or we can say because the capital of the company is divided into shares, that's why it is called share capital. Okay. So share capital simply means the capital raised by company by issue of shares, maybe equity shares or preference shares. Definition of share, all of you know. Share is a unit in which capital of the company is divided. A small unit of company's share capital is called as share. That we have already discussed. A share is a share in company's share capital. Okay. So now we have also we have discussed there are 2 types of shares, equity shares and preference shares. Equity shares means the shares which are not preference shares. Means equity shares do not carry any preferential rights like the preference shares. That's why they are called equity shares or ordinary shares. Okay. So before understanding the equity shares, we have to understand preference shares. And if you can remember, preference shares are called preference shares because preference shares carry 2 preferences or 2 preferential rights. First preference is that preference in getting dividend at a fixed rate before giving dividend to the equity shareholders. So if there is a profit in the company and company decides to declare dividend, then first of all, it has to give dividend to the preference shareholders at a fixed rate. So that is the preference of preference shareholders, that they will get dividend before equity shares. And second preference is the preference in getting capital back at the time of liquidation of the company, at the time of closing of the company. So when company will be closed, these preference shareholders will be given priority in giving the capital back. So as we discuss in partnership, same thing happens in the company. So first of all, company returns the outside liabilities. After paying the amount of outside liabilities, company returns the amount of preference shares. Then at last, company returns the amount of the equity shares. So preference shareholders get preference in 2 things. Number 1, preference in getting dividend, and number 2, preference in getting capital back at the time of liquidation of the company or winding up of the company. That's why these shares are called as preference shares. Is it clear, Sairam? Yes, sir. But equity shares do not have any such preference. Equity shareholders get dividend after all claims are being satisfied. Means interest is paid to the venture holders, dividend is paid to the preference shareholders. At last, whatever is left, that is paid to the equity shareholders. But the rate of dividend is not fixed. They can get high rate of dividend if the profits are very huge in the company. They can get less rate of dividend, or they may not get any dividend at all.
Second, their claims are settled at last after returning the amount of debentures, preference shareholders. At last, the amount of equity capital is returned by the company. But equity shares are the real owners of the company. They have the voting rights. They can elect the board of directors, and their profit is not limited up to any extent. Okay. And equity capital is compulsory for any company, whether it has preference capital or no, that is not compulsory. But without equity capital, a company cannot be formed. That's why equity capital is a prerequisite for the formation of a company. Okay, now there are different types of preference shares. This also we have discussed. First was the cumulative preference shares and non-cumulative preference share. पढ़ाया क्या आपको याद है किसी को? Cumulative preference shares are those preference shares which get the arrears of dividends in coming years. जैसे किसी कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं और 2020 में कोई प्रॉफिट नहीं हुआ कंपनी को और कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स पे कोई डिविडेंड नहीं दिया और 21 में अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो पहले कंपनी पिछले साल का और इस साल का दोनों साल का डिविडेंड देगी इनको, तब बचा हुआ इक्विटी शेयर्स को देगी. इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव. तो प्रॉफिट विल कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग इफ इट इज नॉट पेड इन ए स्पेसिफिक ईयर. समझ में आ रहा है क्या आपको? अगर किसी एक साल में प्रॉफिट नहीं हुआ कंपनी को तो वो प्रॉफिट का राइट इनका खत्म नहीं होगा. दैट प्रॉफिट दे विल गेट इन द कमिंग ईयर्स व्हेन कंपनी विल हैव द प्रॉफिट्स. नॉन क्यूमुलेटिव में क्या होगा? इफ देयर इज अ प्रॉफिट इन दैट ईयर ओनली दे विल गेट द डिविडेंड. दैट प्रॉफिट विल नॉट बी पेड इन द कमिंग ईयर्स. अगर नॉन क्यूमुलेटिव है तो अगले सालों में कंपनी नहीं देगी उसको, उसी साल में प्रॉफिट है तो देगी. तो कंपनी के लिए नॉन क्यूमुलेटिव अच्छा है, इन्वेस्टर्स के लिए क्यूमुलेटिव अच्छा है. कंपनियां नॉर्मली चाहती हैं कि वो नॉन क्यूमुलेटिव इशू करें, इससे उनकी लायबिलिटी नहीं बढ़ेगी. दूसरा होता है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग. Participating preference shares get extra dividend or they have the right to participate in profits of the company in addition to the fixed rate of dividend after making payment of dividend to equity shareholders. यानी इनको हमको फिक्स रेट तो मिलता ही है और इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के बाद में जो बचता है उसमें कुछ परसेंटेज इनको और देती है कंपनी. दैट्स व्हाई दे आर एबल टू पार्टिसिपेट इन additional profits of the company. That's why they are called participating preference shares. और दूसरा जो होता है वो नॉन पार्टिसिपेटिंग होता है. They do not get any additional profit. They get only fixed rate of dividend if there is a profit in the company. So they are called as non participating preference shares. एक होता है convertible preference shares and non convertible preference shares. मीन्स जिनके पास ऑप्शन होता है एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस कंपनी मेंशंस दीज प्रेफरेंस शेयर्स आर कन्वर्टिबल और नॉन कन्वर्टिबल. इफ इट इज अ कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स इट मींस विद इन ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव द राइट टू कन्वर्ट देयर प्रेफरेंस शेयर इनटू इक्विटी शेयर्स. दैट इज कॉल्ड कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर. इट हैज द ऑप्शन टू बी कन्वर्टेड इनटू equity shares. Non-convertible preference shares cannot be converted into equity shares. उनको हमेशा preference share ही रहना पड़ेगा. They cannot be converted into equity shares. और last category होती है redeemable preference shares and non-redeemable. Redeemable होता है कि एक fixed time के बाद उनका पैसा कंपनी लौटा देगी. They are called redeemable preference shares. After 5 years, after 10 years, whatever is the time. And in case of non-redeemable preference shares, company does not return the amount of these shares. It will be returned back only at the time of closing of the company or winding up of the company. They are called non-redeemable preference shares. So these are 4 categories or 8 types of preference shares: participating, non-participating, cumulative, non-cumulative, then convertible, non-convertible, and redeemable and non-redeemable. Okay. Now,
लेट अस कम टू द मेन टॉपिक ऑफ दिस ईयर, दैट इज द शेयर कैपिटल। ठीक है, अब जो हमारा थ्योरी है वो खत्म हो गया, अब न्यूमेरिकल पार्ट शुरू हो जाता है। तो इसमें एक क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट से आता है, आजकल कंपल्सरीली आता है हर एग्जाम में, वो है कि प्रेजेंटेशन ऑफ कंपनी शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट, है ना। तो कंपनी की बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को प्रेजेंट करना केवल, उसका एक क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स में। बाकी मेन क्वेश्चन तो आएंगे, अलग आएंगे, वो तो आएगा ही आएगा। जो इधर वाला जो पार्ट है शेयर कैपिटल का, इससे क्वेश्चन आजकल आ रहा है, प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन कंपनीज बैलेंस शीट। सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट कंपनीज शेयर कैपिटल। Let me present the screen so I can share this. I can use this Android board. Okay. So first we are writing here share capital. No. So this is called classification of share capital or types of share capital. So first is the authorized capital. Who knows this authorized capital? हमने पढ़ा है, लास्ट ईयर भी पढ़ा था 11th क्लास में। Authorized capital. कौन बता सकता है? What is the meaning of authorized capital? Sir, it is the capital mentioned in the memorandum of a company that this maximum amount of share capital of a company can be there. Okay, so this is the maximum amount of capital, है ना? Maximum amount of capital for which a company is authorized by its memorandum of association. Because it is written in the memorandum, so it is called nominal capital or registered capital. This is also called nominal capital or registered capital. A company registered with this amount of capital, so this is the maximum amount of capital for which a company is authorized to issue in its lifetime. Clear है सबको? सही राम? Yes, sir. So suppose the authorized capital of a company is 20 lakh rupees. Let us take an example. So this 20 lakh rupees is the authorized capital and it is divided into 2 lakh equity shares of rupees 10 each. Sorry, of rupees 10 each, है ना? Is it clear? So 20 lakh rupees is the authorized capital and this is divided into equity shares of rupees 10 each. 2 lakh equity shares है कंपनी के पास में। यानी कंपनी अपनी लाइफ टाइम में जब तक वो कैपिटल क्लॉज को चेंज नहीं करेगी, उसको अमेंड नहीं करेगी, तो विदाउट अमेंडिंग उसके बाद कितने शेयर इशू करने का राइट है पूरे लाइफ टाइम में कंपनी के पास? कंपनी अपनी लाइफ टाइम में 2 लाख इक्विटी शेयर इशू कर सकती है और उसकी ऑथराइज कैपिटल कितनी है? 20 lakhs. Now it is not compulsory that company will issue whole capital in the beginning itself. No. So according to the needs of the company, company can issue the shares. तो उसका दूसरा पार्ट होता है issued capital. Issued capital is that part of authorized capital. Is that part of authorized capital which has been offered to public for subscription. This is issued capital, means the part of authorized capital which has been offered to public for subscription. अभी पूरा बैलेंस शीट में दिखाना है, इसलिए बी प्रैक्टिकल, ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आता है इसके ऊपर 4 मार्क्स का 5 मार्क्स का, ठीक है? तो इसलिए बहुत केयरफुली करिए इसको। पहला पार्ट हो गया ऑथराइज कैपिटल, उसमें से जितने शेयर कंपनी इशू कर देती है, जितने की एप्लीकेशन मंगाती है कंपनी, उसको हम बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। द पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल which is
ऑफर टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। जैसे हमारे पास 2 लाख शेयर हैं और कंपनी ने क्या किया, 50,000 शेयर इशू किए, 50,000 इशू किए, 10 रुपए का एक शेयर है, 50,000 शेयर हमारे क्या हो गए, इशूड कैपिटल हो गई, और बचे हुए कितने शेयर हैं वो हो जाएगा अनइश्यूड कैपिटल। इसी का दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, अनइश्यूड कैपिटल। तो दोनों साथ में हो गया। अनइश्यूड कैपिटल मींस दैट पार्ट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल which is not offered to the public to subscribe. Issued capital means the part of authorized capital which is being offered to the public to subscribe. तो कंपनी ने अभी पब्लिक को बोला है कि हम 50,000 शेयर बेचना चाहते हैं, इसके लिए एप्लीकेशन भेजिए। This is the offer given by company to the public for 50,000 shares. 50,000 shares are the subscribed capital. ठीक है। अब दूसरा है इशूड कैपिटल के बाद क्या आएगा, सब्सक्राइब कैपिटल। तीसरी इसमें कैटेगरी आती है, इसको आगे बढ़ा रहा हूं मैं, अगला उस पे जा रहा हूं पेज पे। तो पहला हमने लिखा, मैं यहाँ दोबारा से लिख रहा हूं इसको, इससे समझ में आ जाएगा आप लोग को। पहला हमने लिखा ऑथोराइज्ड कैपिटल, This is the maximum amount of capital for which a company is authorized. जैसे हमने इस एग्जांपल में लिया 20 लाख रुपीस ऑथराइज कैपिटल है, ठीक है, और उसको कंपनी ने डिवाइड किया 2 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। इसमें से कंपनी ने क्या किया, इश्यूड कैपिटल, तो दूसरा पार्ट बच गया इसका अनइश्यूड कैपिटल। अनइश्यूड कैपिटल, ठीक है, आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो मैंने आपको बोला कि कंपनी ने 50,000 शेयर इश्यू किए, 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो इश्यूड कैपिटल हमारी कितनी हो गई, 50,000 शेयर्स फॉर विच कंपनी इज इनवाइटिंग सब्सक्रिप्शन। प्रैक्टिकल भाषा में बोले तो कंपनी ने इतने शेयर्स के लिए एडवर्टाइजमेंट दिया है कि हम इतने शेयर बेचना चाहते हैं, जिनको खरीदना है वो एप्लीकेशन भेजें। दिस इज कॉल्ड इशूड कैपिटल। और जो अभी पब्लिक को ऑफर नहीं किए, जिसके लिए एप्लीकेशन नहीं मंगाई है, उनको बोलेंगे अनइश्यूड कैपिटल। वो कितने शेयर्स हैं, 1,50,000। ये कंपनी ने अभी इशू नहीं किए हैं, जब जरूरत होगी तो कंपनी इसको इशू करेगी। तो अकाउंटिंग में हमारे किसी काम का नहीं है, हमारे काम का अकाउंटिंग में ही है। पहला वाला पार्ट हो गया हमारे काम का, जो है वो इधर वाला पार्ट हमारे लेफ्ट हैंड साइड हमारे काम का रहेगा, अकाउंटिंग में राइट हैंड साइड हमारे काम का नहीं रहेगा, ठीक है। अब जब कंपनी ने पब्लिक को इशू किया 50,000 शेयर, तो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी कि हो सकता है पूरे 50,000 की एप्लीकेशन आ जाए, हो सकता है 50,000 की नहीं आए। तो इसका अगला पार्ट होता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, और सब्सक्राइब्ड का अपोजिट होता है अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल, तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होता है, दिस इज द पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल। देखो इसी के नीचे लिखा है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज द पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल फॉर विच सब्सक्रिप्शन हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक, है ना, विच इज बीइंग सब्सक्राइब्ड बाय पब्लिक, दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। यानी इसके लिए पब्लिक ने एप्लीकेशन भेज दी है। हमने 50,000 शेयर की एप्लीकेशन मंगाई, हो सकता है पूरे 50,000 की एप्लीकेशन आ गई तो पूरी की पूरी कैपिटल सब्सक्राइब हो गई, या 40,000 की एप्लीकेशन मान लेते हैं हम लोग, 40,000 हमारी सब्सक्राइब कैपिटल हो गई, और 10,000 शेयर की एप्लीकेशन नहीं आई तो 10,000 हमारी अनसब्सक्राइब कैपिटल हो गई। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ इश्यूड कैपिटल फॉर विच subscription has been received from the public. Unsubscribed उसका opposite है, it is also a part of issued capital for which subscription is not received from the public. Is it clear? Say Ram. Say Ram. Yes sir. Yes sir. अब ये जो पैसा है, कंपनी ने 40,000 शेयर की एप्लीकेशन, 50,000 शेयर की एप्लीकेशन मंगाई थी, 10 रुपए का शेयर है, एप्लीकेशन 40,000 शेयर्स की आई, लेकिन इसका मतलब है कि नहीं है कि 40,000 शेयर्स का पूरा पैसा मिल गया। कंपनी क्या करती है, पैसा इकट्ठा नहीं लेती है, कंपनी पैसा इंस्टॉलमेंट में लेती है। नॉर्मली क्या इंस्टॉलमेंट रहती है, जब बाद में बात करेंगे,
एक पहली स्टेज होती है एप्लीकेशन के टाइम कुछ पैसा लेती है कंपनी, दूसरा होती है अलॉटमेंट के टाइम कुछ पैसा लेती है, तीसरा होती है कॉल्स के टाइम कुछ पैसा लेती है। तो अभी कंपनी ने सपोज करो 2 रुपए मांगे थे इनसे एप्लीकेशन के टाइम पे, तो 2 रुपए तो मिल गए थे इनको, लेकिन अभी बाकी पैसा भी मांगना बाकी है। तो क्या करते हैं इसको, तीसरी कैटेगरी जो बनाई है वो है इसमें सब्सक्राइब कैपिटल 2 पार्ट करती है, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। And subscribed but not fully paid up. Now be very careful. तो हमारा किसका पार्ट है दोनों, सब्सक्राइब का पार्ट है, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप मतलब क्या हुआ कि पब्लिक ने एप्लीकेशन भी भेजी, कंपनी ने पूरा पैसा मांग लिया और पब्लिक ने पूरा पैसा दे दिया। यानी 40,000 शेयर में से 35,000 शेयर ऐसे हैं जिन पे पूरे 10 रुपए कंपनी को मिल गए। तो एक तो कंपनी ने कॉल कर लिया इस पे, कॉल्ड एंड पेड, इसको बोलते हैं कॉल्ड एंड पेड। कॉल्ड मतलब कंपनी ने पैसा मांग लिया, ये तीनों स्टेज मांग चुकी है कंपनी। यहाँ पर सपोज करो 5 रुपए मांगे कंपनी ने, यहाँ पर 3 रुपए मांगे, तो कंपनी पूरा पैसा मांग चुकी है तीनों स्टेज का, और ये शेयर होल्डर पूरा पैसा दे चुकी है। तो उसको बोलेंगे सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। इज इट क्लियर? सबको समझ में आ रहा है क्या? यस सर। ठीक है, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। अब इसकी दूसरी कैटेगरी बची सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। अब ये कंडीशन क्या होती है, सब्सक्राइब एंड फुली, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप मे बी बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। इसके 2 रीजन होते हैं। 1, आप लिख लीजिए इसको, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल मे बी बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। नंबर 1, company has not yet called the amount due on shares. Company has not yet made the calls. कंपनी को जो पैसा मांगना था, अभी सपोज ये 3 रुपए कंपनी ने मांगे नहीं, अभी पहला इंस्टॉलमेंट मांग लिया कंपनी ने पब्लिक से और दूसरा इंस्टॉलमेंट मांग लिया। ये वाला कॉल्स का जो 3 रुपए है वो नहीं मांगा कंपनी ने। तो कंपनी ने नहीं मांगा तो पब्लिक ने नहीं दिया, पब्लिक ने नहीं दिया तो इस शेयर पे कितना पैसा मिला है? तो केवल 7 ही रुपए मिले हैं, है ना। तो इसलिए क्या है, फुली पेड अप नहीं हुआ। जब 10 रुपए पूरा मिल जाएंगे तो फुली पेड अप होगा ये, लेकिन अभी तक तो 7 ही मिला है। तो 7 मिला तो कौन सा है, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। तो पहला रीजन क्या हो गया, कॉल्स आर नॉट मेड बाय द कंपनी ना, फुल अमाउंट ऑफ शेयर इज नॉट कॉल्ड बाय द कंपनी। दूसरा हो सकता है कॉल्स आर मेड बाय द कंपनी बट नॉट पेड बाय द शेयर होल्डर्स। सेकंड रीजन होता है calls are made by the company but not paid by the shareholders. Calls are made by the company but not paid by the shareholder. कंपनी ने पूरा 10 रुपए मांग लिया, 2 रुपए, 5 रुपए, 3 रुपए, इसमें से 5,000 के लोग थे, उन्होंने क्या किया, लास्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, 3 रुपए का जो कॉल था वो वाला नहीं दिया, इसलिए शेयर कौन सी कैटेगरी में आ गए, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। समझ में आया क्या? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाइवा में पूछेंगे आपसे, इन विच कंडीशंस इज द शेयर ऑफ द कंपनी बिकम सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। सो 2 कंडीशंस आर देयर। फर्स्ट कंडीशन क्या बताया आपको हर्षी? Sir, when the company has not yet made the calls. कंपनी हैज नॉट येट मेड द कॉल्स, कंपनी ने अभी पैसा नहीं मांगा। दूसरा, Calls are made but shareholders have not paid the amount. हाँ, तो पहला पार्ट में कौन रिस्पॉन्सिबल है, कंपनी है, क्योंकि कंपनी ने कॉल ही नहीं किया। और दूसरे पार्ट में कौन रिस्पॉन्सिबल है, Stockholders. शेयर होल्डर्स, है ना। दे हैव नॉट पेड, तो जो शेयर होल्डर्स ने नहीं दिया उसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स। जो सेकंड रीजन उसका नाम क्या है, टेक्निकल नाम है उसका, उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है, इफ कंपनी हैज मेड द कॉल्स and this amount is not paid by the shareholders, that is called as calls in arrears. So maybe calls in arrears is the reason
or company has not made the calls, that's why this capital is called as subscribed but not fully paid up capital. Is it clear? Sairam, Yes, sir. Yes, sir. अब लास्ट टाइप है रिजर्व कैपिटल. रिजर्व कैपिटल लिखिए. रिजर्व कैपिटल is part of subscribed capital. Reserve capital is that part of subscribed. Very important है, आप बहुत ध्यान से समझना इसको, क्योंकि एमसीक्यू में आता है. तो उसने लिख दिया रिजर्व कैपिटल इज द पार्ट ऑफ इश्यूड कैपिटल और ऑथराइज्ड कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल. बड़ा क्लियर होना चाहिए आपको. रिजर्व कैपिटल किसका पार्ट है? सब्सक्राइब कैपिटल का. तो रिजर्व कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल which is reserved by company for the time of binding up. WI and DING, binding up by a special resolution. Means company will not call this capital except the condition of binding up. जब कंपनी बंद होगी और पैसे की जरूरत पड़ेगी तभी कंपनी इस पैसे को मांगेगी, अदरवाइज इस पैसे को नहीं मांगेगी. एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट इट इज शोन इन द बैलेंस शीट एज सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप. अपने आप ही होगी ना, क्योंकि बताया ना मैंने, कंपनी ने कॉल नहीं किया तो कौन सा कैटेगरी में आ गई वो. दो कंडीशन बताई आपको, कंपनी ने नहीं मांगा या शेयर होल्डर ने नहीं दिया, तब भी दोनों में कौन सी कैटेगरी में आएगी वो? सब्सक्राइब्ड बट नॉट fully paid up capital. So it will come in the category of subscribed but not fully paid up capital. ठीक है. अब यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो आता है हाँ जी सर रिजर्व एक बार बता दीजिए, सब्सक्राइब कैपिटल में क्यों आएगा सर? क्या चीज? सर रिजर्व है सर, वो सब्सक्राइब कैपिटल में क्यों आएगा सर? रिजर्व नहीं है, रिजर्व कैपिटल है. हाँ रिजर्व कैपिटल सर. मैंने क्या बताया आपको? रिजर्व कैपिटल इज दैट पार्ट. ये जो कैपिटल थी हमारी सब्सक्राइब कैपिटल, यानी 40,000 शेयर के हमारे पास एप्लीकेशन आई है. समझ में आ रहा है क्या आपको? सब्सक्राइब कैपिटल कितनी है? 40,000 है. यस सर. इसमें से 5,000 शेयर का कंपनी ने केवल 2 रुपए लिया एप्लीकेशन का. ठीक है. यस सर. ये तो लेना ही पड़ेगा, एप्लीकेशन में नहीं बना तो आएगा नहीं वो. एप्लीकेशन का 2 रुपए बचे हुए कितने? 8 रुपए जो बचे इसके ऊपर, कंपनी ने बोला कि हम 5,000 शेयर पे 8 रुपए के हिसाब से शेयर कॉल ही नहीं करेंगे. ना तो अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे ना कॉल का पैसा मांगेंगे. या अलॉटमेंट का मांग लिया, 3 रुपए कॉल का पैसा नहीं मांगेंगे इनसे. 3 रुपए कॉल का पैसा कब मांगेंगे इनसे? जब कंपनी बंद होगी और तब जरूरत पड़ेगी. तो कौन सी कैटेगरी में आ गई? रिजर्व कैपिटल नहीं, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप. क्योंकि फुली पेड अप कब होगा? ये जब कंपनी पूरा पैसा मांग लेगी और शेयर होल्डर पूरा पैसा देगा. तो कंपनी तो 3 रुपए मांगेगी नहीं ये वाला, क्योंकि कंपनी ने तो रिजर्व कर दिया कि कब मांगेंगे इसको हम? जब कंपनी बंद होगी, बाइंडिंग अप पे टाइम के लिए मांगेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो इसलिए कौन सी कैटेगरी में बन गया ये? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, है ना. कौन सी कैटेगरी में रहेगा वो? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप. क्योंकि वो जब तक कंपनी मांगेगी नहीं तब तक वो पेड अप नहीं होगा, इसलिए वो इस कैटेगरी में तो आएगा नहीं. सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में तो कौन सी कैटेगरी में रहेगा? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप. ठीक है. कौन पूछ रहा था ये भी? साईराम. यस सर. क्लियर हो गया? हाँ सर. अब यहाँ का जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो थ्योरी में आता है वो है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन
रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व, लिख लीजिए आप लोग। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व? What is the difference between reserve capital and capital reserve? ठीक है, तो रिजर्व कैपिटल क्या है? रिजर्व कैपिटल इज द पार्ट ऑफ कंपनीज कैपिटल, है ना, which is reserved for the time of winding up. That is called reserve capital. Reserve capital is the part of capital which is reserved by the company for the time of winding up. Capital reserve is the reserve which is created out of capital profit. Capital reserve is the reserve which is created out of capital profit. आपको पता दो तरह के प्रॉफिट होते हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट एंड कैपिटल प्रॉफिट। जो नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से जो प्रॉफिट होता है वो रेवेन्यू प्रॉफिट है। बाकी इंसिडेंटल एक्टिविटी से जो प्रॉफिट होता है वो एबनॉर्मल प्रॉफिट है। जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स है तो वो कौन सा कैपिटल प्रॉफिट है, ठीक है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स है तो वो भी कैपिटल प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट को कंपनी एक रिजर्व में ट्रांसफर कर देती है, दैट इज नोन एज कैपिटल रिजर्व। सो कैपिटल रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स, है ना। रिजर्व कैपिटल इज ए पार्ट ऑफ कैपिटल, बट कैपिटल रिजर्व इज नॉट ए पार्ट ऑफ कैपिटल, इट्स ए रिजर्व व्हिच इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। So capital profits cannot be utilized normally, है ना, like revenue profits or revenue reserves. So these capital profits are transferred to a reserve that is called as capital reserve. इसमें difference दिए, meaning दिया है, creation दिया है, reserve capital uncalled capital है, और ये जो है profit है वो capital profit है। बनाना मैंडेटरी है कि नहीं है? तो रिजर्व कैपिटल कंपलसरी नहीं है, इट्स नॉट मैंडेटरी टू हैव रिजर्व कैपिटल। कंपनी चाहे तो कैपिटल को रिजर्व करे या नहीं करे, बट कैपिटल रिजर्व बनाना जरूरी है। अगर आपको कैपिटल प्रॉफिट हुआ है तो दैट मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू ए कैपिटल रिजर्व। इफ देयर इज ए कैपिटल प्रॉफिट दैट मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू ए कैपिटल रिजर्व। रिजोल्यूशन कैपिटल रिजर्व के लिए कोई रिजोल्यूशन नहीं चाहिए, कंपनी को कोई प्रपोजल पास नहीं करना पड़ेगा अपनी मीटिंग में, बट रिजर्व कैपिटल के लिए कंपनी हैज टू पास ए स्पेशल रेजोल्यूशन। अब बता दो स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है। स्पेशल रेजोल्यूशन होता है विच नीड्स 2/3 मेजॉरिटी टू बी पास। जैसे किसी मीटिंग में अगर 100 लोग प्रेजेंट हैं तो 67 लोग इसके फेवर में होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड स्पेशल रेजोल्यूशन। सो फॉर मेकिंग ए कैपिटल रिजर्व, इस कैपिटल को रिजर्व करने के लिए जो रिजर्व कैपिटल बनाते हैं उसके लिए कंपनी को एक स्पेशल रेजोल्यूशन लाना पड़ेगा मीटिंग में। एनुअल जनरल मीटिंग कंपनी की जो होती है, एंड दैट मीटिंग शुड दैट रेजोल्यूशन और दैट प्रपोजल शुड गेट सपोर्ट ऑफ 2/3 मेजॉरिटी, ना 2/3 लोग सपोर्ट करेंगे तभी वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है। अगर 2/3 से कम लोग होंगे तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं होता है। इसलिए इसको बोलते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन दैट नीड्स 2/3 मेजॉरिटी। सो कंपनी हैज टू पास ए स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर reserve capital. Capital reserves do not need any resolution from the company. Writing of capital losses, मतलब यूजेज कह सकते हैं, किस काम के लिए यूज कर सकते हैं? तो रिजर्व कैपिटल कैन बी यूज ओनली एट द टाइम ऑफ बाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी टू मेक पेमेंट ऑफ आउटसाइड लायबिलिटीज। अगर कंपनी का बाइंडिंग अप होता है, कंपनी बंद होती है और आउटसाइड लायबिलिटीज को पे करने के लिए पैसा नहीं बचता, तो कंपनी ये पैसा मांग सकती है शेयर होल्डर से, सो दे कैन पे द आउटसाइड लायबिलिटीज। बट कैपिटल रिजर्व कैन बी यूज्ड टू मीट द कैपिटल लॉसेस, टू राइट ऑफ द कैपिटल लॉसेस। तो कैपिटल लॉस अगर कोई होता है कंपनी में, सो दैट कैन बी रिटन ऑफ आउट ऑफ कैपिटल रिजर्व। उसके लिए कैपिटल रिजर्व का हम यूज कर सकते हैं टू राइट ऑफ द कैपिटल लॉसेस इन द कंपनी। एंड डिस्क्लोजर, कैपिटल रिजर्व कहीं भी कंपनी की बैलेंस शीट में शो नहीं होती है। बताया मैंने आपको, समझ में आएगा आपको? शरद क्लियर हो रहा है? अभी शरद, साईराम, कैपिटल रिजर्व का कोई नहीं होता। हमको पता है कि हमने ये पैसा मांगना नहीं है, तो बैलेंस शीट में शो क्या होगा? ये शो होगा बैलेंस शीट में, समझ में आ रहा है? बैलेंस शीट में क्या शो, डिस्क्लोज क्या होगा? ये वाला पार्ट
सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, तो हमेशा कौन सी कैटेगरी में रहेगा ये? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। इसका मतलब हमको पता है कि ये क्यों नहीं पेड अप हो रहा पूरा, क्योंकि हमने इस पैसे को रिजर्व कर दिया है। सो इट इज नॉट डिस्क्लोज इन द रिजर्व कैपिटल इज नॉट डिस्क्लोज एज ए सेपरेट आइटम इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। वो अलग से नहीं दिखाते हैं कंपनी की बैलेंस शीट में, बट कैपिटल रिजर्व इज डिस्क्लोज सेपरेटली इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। कैपिटल रिजर्व को हम दिखाते हैं अलग हेडिंग में बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। सर ठीक है साईराम? सर साईराम साईराम सर सर जैसे सर कंपनी के पास सर जो शेयर रहते सर उनमें सर पैसे कॉल नहीं करे तो फिर सर वो किस में आएंगे? वो तो आएंगे ना इस कैटेगरी में भाई। ऐसा अभी आपको समझ में आएगा, अभी थोड़ी देर होल्ड करो फिर आपको समझ में आने लगेगा। अभी हमारा कंसेप्ट क्या है कि कंपनी पूरा पैसा मिल गया, कंपनी ऐसा नहीं करती। कंपनी पैसा इंस्टॉलमेंट में लेती है, शुरू में केवल एक ही पैसा लेती है एप्लीकेशन पे, है ना? वो एप्लीकेशन का पैसा तो मिल गया उनसे, बाकी पैसा नहीं मिला है। हेलो, अरे वो बात तो सामने है ना, तो ओके साईराम। साईराम सर। हाँ विश्वास, क्या कर रहा था बताओ? सर मैं ये कह रहा था सर, जैसे कंपनी ने सर 10 रुपए का शेयर इशू किया है हाँ जी सर, तो सर उनने कॉल अप किए हैं सर 8 रुपीज ओनली। ठीक है। सर तो 2 रुपीज जो बच रहे हैं सर वो उनने अभी कॉल अप ही नहीं किए सर, वो तो वो कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं जाएंगे, वो पता है कंपनी में, उसमें लिखेंगे हम सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल, तो उसको समझ में आ रहा है कि इस पे भी पूरा पैसा कॉल नहीं किया गया है। कॉल से लेरियस दिखाएंगे वहां पे, अगर समझ में आता है उससे, है ना? यस सर, यस सर, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो डिस्क्लोजर में आ जाता है अपने आप ही आता है। यस सर। ठीक है, तो ये जो तो हमारा हो गया प्रेजेंटेशन और टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। तो पहला हो गया ऑथराइज्ड कैपिटल। दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल फॉर विच ए कंपनी इज ऑथराइज्ड टू यूज और टू इश्यू इन इट्स लाइफ टाइम। उसमें से जितना शेयर कंपनी ने इश्यू कर दिए, पब्लिक को ऑफर कर दिए, उनको बोलते हैं इश्यूड कैपिटल। उसमें जितने की एप्लीकेशन आ गई उसको बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। और सब्सक्राइब का अगर पूरा पैसा मांग लिया कंपनी ने और पूरा पैसा मिल गया तो हो गया सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। और या तो कंपनी ने पूरा पैसा नहीं मांगा या पब्लिक ने पैसा नहीं दिया तो वो आ जाएगा सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल। तो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप मे बी बिकॉज ऑफ 2 reasons. Number 1 reason is that company has not yet made the calls, that's why they are not fully paid up. And second may be that company has made all the calls but some of the shareholders could not pay the calls money, that's why they are not fully paid up. Okay, and one more reason may be there, some part of the subscribed capital may be reserved by the company for the time of winding up, then also it will not become fully paid up. Is it clear? ठीक है Sir, हाँ जी बोलिए। sir, how company differentiate between preference shares and equity shares, that how much preference shares has to be issued and how much equity share had to be issued? Okay, very good question. No provision in the Companies Act regarding this. This is the totally choice of the company's directors that how many shares they want to create equity shares or how many shares they want to create preferences. But there must be some basic capital that should be raised from issue of equity shares. Equity capital compulsory है, उसके बिना कंपनी नहीं बनेगी। तो इसमें ऐसे 50,000 इक्विटी शेयर बना दिए, बाकी 1.5 लाख को चाहते तो प्रेफरेंस बना सकते थे। अब बात क्या होती है, बात ये नहीं है कि कंपनी कौन से शेयर बनाएगी, बात क्या है कि कंपनी को पता होना चाहिए कि कौन से शेयर पब्लिक खरीदेगी,
है ना, पब्लिक को शेयर्स को बेचेगी किसको, कंपनी पब्लिक को बेचेगी। तो आपने देखा हो पब्लिक मोस्टली कौन से शेयर्स में इंटरेस्टेड होती है? Preference shares. हाँ, Preference shares. प्रेफरेंस शेयर इज द वर्स्ट इन्वेस्टमेंट। उससे खराब इन्वेस्टमेंट तो कुछ होता ही नहीं है। वो तो हिंदू होते ना मुसलमान होते ना, इधर को होते ना उधर कहीं के नहीं होते हैं। वो क्यों नहीं होते? क्योंकि डिवेंचर होल्डर को तो इंटरेस्ट की गारंटी होती है, मिलनी है, लोन है, और इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स होता है, उनके शेयर्स में मार्केट फ्लक्चुएशन होता है, उससे प्रॉफिट मिलता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को तो शायद ही कभी प्रेफरेंस उतना ही डिविडेंड मिलकर रहता है अगर मिलता भी है तो, है ना। इक्विटी शेयर होल्डर्स को तो बहुत कम लोग लाइक करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स को, इससे अच्छा तो लोग डिवेंचर खरीद लेंगे। प्रेफरेंस शेयर खरीदने के बाद लोग डिवेंचर्स खरीदते हैं। सो वेरी लेस नंबर ऑफ शेयर्स आर क्रिएटेड एज प्रेफरेंस शेयर। आजकल तो कंपनियां प्रेफरेंस शेयर बनाती नहीं, लगभग ऑलमोस्ट बंद कर दिया है। मोस्ट ऑफ द कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर्स, है ना। सो कोई ऐसा Okay, sir. कंपनी सेक्टर में नहीं दिया कहीं कि कितना परसेंट कैपिटल इक्विटी होगा, कितना परसेंट प्रेफरेंस होगा। वो कंपनी का अपना कैपिटल स्ट्रक्चर जो डिजाइन करती है, अपना रिस्क असेसमेंट करके, रिटर्न्स का असेसमेंट करके, उसके हिसाब से कंपनी डिसाइड करती है कि अभी आप पढ़ाएंगे पीएस में पढ़ाएंगे कैपिटल स्ट्रक्चर, उसमें समझ में आएगा कि कितना बोरोड फंड यूज करना है, कितना ओनर्स फंड यूज करना है, ओनर्स फंड में भी कितना पैसा इक्विटी शेयर से लेना है, कितना पैसा प्रेफरेंस शेयर से लेना है, कितना पैसा रिटेन्ड अर्निंग से लेना है। दैट इज डिसाइडेड अंडर द कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। तो वहां कंपनी डिसाइड करती है, बट देयर इज नो सच provision in the Companies Act that what percentage of its capital should be a preference share or what percent should be equity shares। ऐसा कोई प्रोविजन कंपनी एक्ट में नहीं है, ठीक है। Okay, sir. ओके, Yes, sir. हाँ जी बोलिए। सर अगर हम कंपनी एक नई बना रहे हैं तो सर हमें अभी स्टार्टिंग में कौन से शेयर्स इशू करने चाहिए? कंपल्सरीली इक्विटी शेयर्स, कंपल्सरीली। विदाउट इक्विटी शेयर कंपनी कैन नॉट बी फॉर्म। पर सर, हाँ जी, सर अगर कंपनी फॉर्म ही हो रही है तो उसकी तो कोई गुडविल ही नहीं होगी, तो लोग उसके शेयर्स खरीदेंगे क्यों? हाँ ये बात तो सही है, क्यों खरीदेंगे? फिर भी लोग खरीदते हैं क्योंकि वो कंपनी कुछ तो प्रोजेक्ट लेकर आई होगी ना। यस सर। कोई नया स्कूल बनता है उसमें बच्चे एडमिशन नहीं लेते क्या? यस सर। तो वो क्या करते हैं, अपने फीचर्स बताते हैं, अपनी अपनी ऐसा ही अपनी क्या बोलते हैं उसको, जो है ना यूएसपी बताते हैं कि हमारी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या है, हमारे क्या क्या फैसिलिटीज हैं। ऐसे ही कंपनी अपना प्रोजेक्ट बताती है कि फ्यूचर में वी विल वर्क इन दिस एरिया, और उसका क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, वहां ग्रोथ के कितने चांसेस हैं। तो डेफिनेटली लोग इन्वेस्ट करते हैं उसमें, है ना। कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन देखते हैं लोग कि कंपनी फाइनेंशियल वायबल है कि नहीं है, प्रोजेक्ट अच्छा है तो लोग इन्वेस्ट करेंगे उसमें। आई बात सही है कि इनिशियली उसकी मार्केट शेयर वैल्यू कम होती है, मार्केट वैल्यू लगभग कम रहती है। बाद में जब वो कंपनी बढ़ती जाती है तो उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ती जाती है शेयर्स की। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री जब बनी थी तब उसके मार्केट शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए थी, आज भी 10 रुपए फेस वैल्यू, लेकिन मार्केट प्राइस उसका 4800 रुपए पहुंच गया। 10 रुपए के शेयर की वैल्यू 4800 रुपए पहुंच गई। क्यों पहुंच गई? क्योंकि कंपनी अच्छे काम कर रही है, प्रॉफिट में चल रही है। तो इन्वेस्ट तो करेंगे लोग, लेकिन मार्केट वैल्यू उसकी कम रहेगी, फेस वैल्यू कम रहेगी, मार्केट वैल्यू कम रहेगी, ठीक है। Okay, sir. Yes, sir. अच्छा उल्टा होता है, कई बार नई कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना बढ़िया रहता है लोगों का। कई बार क्या होता है, नई कंपनी तो क्या डार्क हॉर्स है, वो तो ब्लैक हॉर्स है, पता नहीं है कैसा करेगी, तो रिस्क लेके कई लोग इन्वेस्ट कर देते हैं। बाकी मालूम चला कंपनी का अच्छा परफॉर्मेंस रहा, प्रॉफिट अच्छा है, तो कंपनी के शेयर्स की मार्केट वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ती है। मार्केट वैल्यू तेजी से बढ़ेगी तो आप अपना शेयर बेच के प्रॉफिट कमा सकते हो, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। मुझे तो एक कंपनी का याद है ना, मैंने कई बार सुना दो भाइयों की कहानी। आपको कौन कौन है दो भाई, इसकी कहानी सुनाई मैंने दो भाइयों की आपको। सर अंबानी मुकेश अंबानी एंड अनिल अंबानी, है ना। तो जो है अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी का तो पता ही है सबको, वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन। अनिल अंबानी, इनके पास एक पता है गैस का भी बहुत बड़ा काम है अंबानी इसका। रिलायंस इज द बिगेस्ट कंपटीटर ऑफ गेल इन द गैस मार्केट। गैस में रिलायंस बड़ा कंपटीटर है गेल का। तो मुकेश अंबानी अनिल अंबानी ने एक कंपनी बनाई, ये बात है लगभग कौन से साल की है, 2005 के आसपास की, 2008 की बात है, 5-6-7 के आसपास। RNRL लिमिटेड, रिलायंस नेचुरल
रिसोर्सेज लिमिटेड, ये कंपनी बनाई इसने अनिल अंबानी ने। एक गोदावरी बेसिन है आंध्र प्रदेश के आसपास, जो गोदावरी एरिया वहां पे पता है गैस की जमीन के नीचे से निकलती है, और इसका एरिया भी ऑप्शन होता है, गवर्नमेंट इसको ऑप्शन करती है, जैसे आपकी माइंस ऑप्शन होती है ऐसे इसका, और जो गैस फील्ड है वो ऑप्शन होते हैं। तो वहां इसने कुछ गैस फील्ड खरीदे गवर्नमेंट से और एक कंपनी बनाई RNRL लिमिटेड, रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड। अब इसके नाम, इसके साथ में नाम जुड़ा था रिलायंस का, और ये IPO लेके आई। IPO समझ जाएंगे आपको, भी पढ़ेंगे IPO को। IPO लेके आई मार्केट में, नहीं शेयर इशू किया, पहली बार जो कंपनी शेयर इशू करने आती है मार्केट में IPO होता है। तो इसने लगभग 1 करोड़ शेयर लेके आई कंपनी मार्केट में। अब लोगों को लगा कि रिलायंस की कंपनी है और इसकी मार्केट वैल्यू तो बहुत तेजी से बढ़ेगी, बड़ी सक्सेसफुल कंपनी बनेगी। तो इसने जो है, इसकी फेस वैल्यू थी शेयर की 10 रुपए, और इशू प्राइस रखा 225 रुपए, 250 रुपए 225 रुपए से इशू प्राइस रखा। वो भी कैसे होता अपन समझेंगे अभी। 10 रुपए का शेयर की प्राइस फिक्स की, लगभग 225 रुपए ना, नहीं इसकी इशू प्राइस था कितना, ज्यादा था इशू प्राइस, 450 के आसपास रखा इसने, 450 रुपए के आसपास। अब एकदम इसकी मारामारी, पूरे मार्केट में एप्लीकेशन फॉर्म ही नहीं मिले, इतना भयंकर। जैसे स्टॉल लगते हैं सब्जी, कैसे स्टॉल लगा के लोगों ने फॉर्म बेचे मार्केट में बैठ के, तब भी रिलायंस जैसे तैसे लोगों ने पैसा ले लिया। और लोग क्या सोच रहे थे, जैसे इसका इश्यू आएगा हमारे हाथ में शेयर आएंगे, इसकी मार्केट वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ेगी, हम डबल करके इसको बेच देंगे, बहुत प्रॉफिट कमाएंगे। तो ये जो है 109 टाइम ओवर सब्सक्राइब हुआ, यानी 101 करोड़ शेयर थे तो 109 करोड़ शेयर्स की एप्लीकेशन आई इसके पास रिलायंस। और जब इसका इश्यू खुला तो जो इसकी बेस प्राइस था कितना, 450 रुपीज, 3 दिन बाद एक घटके मार्केट में 220 रुपए पे आ गया, है ना। फिर इसने एक शेयर बोनस इशू कर दिया लोगों को कि लोगों का नुकसान नहीं होता, एक के बदले एक शेयर फ्री दे दिया। तो 500 रुपए में खरीदा तब भी उसको 225 का पड़ा है। और उसके बाद इसकी प्राइस घटना चालू हुई तो अभी तक मार्केट में 90 रुपए 80 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, आज तक वो बढ़ा नहीं 90-80 रुपए से, और कंपनी फेल हो गई, आज तक चली नहीं पाई कंपनी। रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड आज भी फेल है। RNRL लिमिटेड का शेयर आज भी वही 70, 80, 60, 50 80 के बीच में ट्रेड करता है, उससे ऊपर आज तक नहीं गया, अपनी फेस वैल्यू तक नहीं, वहां तक नहीं पहुंचा, जितना उसका बेस प्राइस था वहां तक भी नहीं पहुंचा है। तो ऐसा भी हो सकता है कई बार, इसलिए बोलता हूँ ना, मुकेश अंबानी जो है बहुत सक्सेसफुल है, अनिल अंबानी के पास बस एक ही चीज है, बाकी तो वो गड़बड़ आदमी है। ठीक है, चलिए अटेंडेंस लेते हैं। हाँ जी सर, ये डिसाइड कैसे होता है कि सर फेस वैल्यू तो कंपनी डिसाइड करती है सर, पर मार्केट वैल्यू कैसे डिसाइड होती है? वो खुद प्रमोटर डिसाइड करेगा, जिसने कंपनी बनाई वो डिसाइड करेगा अपना माल कितने में बेचो, आपको खरीदना तो खरीदो, नहीं खरीदना तो मत खरीदो। आप सामान बेचते हो ना दुकान पे, यस सर। प्राइस आप फिक्स कर दो कि आपका माल है, आप कितने बेचोगे। कस्टमर की इच्छा है, खरीदे तो नहीं खरीदना तो खरीदे, नहीं खरीदना मत खरीदो, साईराम। ठीक है सर, पर दुकान पे तो एक प्राइस होती है, उसके बाद हम वैल्यू ऐड करते हैं, तो वहां भी वैल्यू शेयर में क्या करते हैं? सेल में वैल्यू ऐड होती है ना अपने आप, उसकी कंपनी की रेपुटेशन, प्रॉफिटेबिलिटी, लगता है लोगों को प्रोजेक्ट अच्छा है, जैसे इसमें लोगों ने सोचा कि इसका अच्छा प्रोजेक्ट होगा क्योंकि रिलायंस का प्रोजेक्ट है, तो लोगों को लगा तो उन्होंने इन्वेस्ट किया, है ना। तो वो मार्केट फैक्टर रहता है, अपनी अपनी रेपुटेशन रहती है, कौन कंपनी कितनी अच्छी चल रही है। दीपांशी एब्सेंट है, हर्षी सिंह गुर्जर प्रेजेंट है, ईशांश वशिष्ठ बड़े दिनों बाद आया ईशांश। आज ईशांश कहाँ गया था, रावण वध करने? कार्तिक यस सर। रावण का दहन करने गया था, इतने दिनों से कहाँ गया था? बड़े दिनों बाद दिखाई दिया क्लास में। मानवी नमन एब्सेंट है, नीरज नंदिनी एब्सेंट है, नंदिनी आई तो थी बीच में, नीरज, उसके बाद नियति, नियति के बाद प्रियांशु बर्मन, पलक नहीं है, पार्थ नहीं है। पार्थ था ना शुरू में, पार्थ चला गया क्या? शुरुआत में सबसे पहले पार्थ ही खोल के बैठा था। प्रियांशु वर्मा, संध्या राजपूत, शरद राय, श्रेष्ठा भी बीच में दिखी थी कहीं, चली गई। सिद्धार्थ जैन,
उसके बाद उमंग शर्मा, विकास एबसेंट, विश्वास था क्या बीच में? विश्वास में दिखा था बीच में कहीं? चलो ठीक है, मिलते हैं आफ्टर 10-15 मिनट्स इन द नेक्स्ट क्लास। सर एक हाँ बोलो डाउट है सर, इसमें डेफिनेशन में दिया है सब्सक्राइब कैपिटल मीन्स सच पार्ट ऑफ कैपिटल विच इज फॉर द टाइम बीइंग सब्सक्राइब्ड बाय द मेंबर्स ऑफ अ कंपनी। बाय द मेंबर्स ऑफ कंपनी हाँ। सर ये समझ में नहीं आया सर, आपने ये सब मतलब जिनका पैसा शेयर होल्डर दे चुके, मेंबर्स कौन होते हैं कंपनी के? हु आर द मेंबर्स ऑफ द कंपनी? लेकिन Shareholder. सर अभी तो शेयर होल्डर हुए थोड़ी हैं। नहीं नहीं, शेयर होल्डर अभी बताऊंगा, अभी मत पूछो, बाद में समझ में आने लगे, बाद ही फालतू कर पूछोगे। जब पूरा प्रोसेस होगा तो आपको समझ में आएगा कि कब होगा वो शेयर होल्डर, बताऊंगा आपको। ठीक है, अभी पूरा प्रोसेस समझ लो, उसके बाद अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके। हाँ Sir, सिद्धार्थ बोलो। sir, can company increase the limit of authorized capital? यस, बाई अमेंडिंग, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता है ना हमारे, चेंज करते हैं, ऐसे ही अमेंडमेंट ला सकती है। कैपिटल क्लॉज होता है, पढ़ा था मेमोरेंडम में, कैपिटल क्लॉज को चेंज करना पड़ेगा। उसकी कुछ प्रोसीजर है, कंपनी लॉ बोर्ड से परमिशन लेना है, सेबी से परमिशन लेना है, फिर वो कर सकती है, अमेंड कर सकती है, हो सकता है। 2/3 मेजोरिटी चाहिए उसके लिए, स्पेशल रेजोल्यूशन लाना पड़ेगा और कंपनी अमेंड कर सकती है उसको। Okay, sir. Sir, is हाँ। it any connection between Sensex and share price? वेरी गुड, वो उसी पूरा 100% कनेक्शन है। सेंसेक्स है द एवरेज ऑफ शेयर प्राइस, उसका चेंज का ही तो प्राइस है वो, और क्या रिफ्लेक्ट करता है? सेंसेक्स इज द एवरेज ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द शेयर प्राइसेस। बीएसई में जो शेयर लिस्टेड है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, इनकी लिस्टिंग हुई है, उन शेयर्स की जो प्राइस में इंक्रीज और डिक्रीज है उसका एवरेज दिखाता है सेंसेक्स। And sir, Nifty? निफ्टी उसका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का है ना? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, एनएससी में जो शेयर्स रजिस्टर्ड हैं उनमें जो फॉल और डिक्रीज उसका एवरेज निफ्टी होता है। सर और ये एक और था सर कि सर सारी पब्लिक कंपनी को सर सेबी के अंडर रजिस्ट्रेट होना जरूरी है। लिस्टेड कंपलसरी, अगर आप पब्लिक इशू के लिए जाएंगे, शेयर इशू करेंगे, तो सबसे पहले कंडीशन है कि आपको सेबी से अप्रूवल लेनी पड़ेगा, तो लिस्टिंग इज कंपलसरी। तो सर हाँ जी, तो सर 30 कंपनी ओनली सर रजिस्टर्ड है किसमें? सर सेबी में। नहीं नहीं, सारी कंपनी को जाना पड़ेगा, जो भी कंपनी जाएगी अपनी, चाहे किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे जा रहे हैं आप, तक सेबी में जानी पड़ेगा आपको। बीएसई में कितनी है पता नहीं, लेकिन सर सेबी में 30 है सर बीएसई में। बीएसई में 30 है, लेकिन कितने सारे स्टॉक एक्सचेंज है, और किसी पर रजिस्टर कराया होगा उसने? 18 स्टॉक एक्सचेंज है पूरी इंडिया में। सर बीएसई क्या है? बीएसई तो एक स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है। बीएसई सिंगल स्टॉक एक्सचेंज है, सबसे पुराना, सबसे बड़ा हुई है, इसलिए इसका नाम ज्यादा है ना? बीएसई इज आल्सो स्टॉक एक्सचेंज। बीएसई एक स्टॉक एक्सचेंज है, लेकिन बाकी 18 स्टॉक एक्सचेंज है, उसमें और किसी पे भी लिस्ट करा सकती है अपने आप को। ओके सर। ठीक है।